بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دو. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن اس وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل ہوا اذن, اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں, اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں, یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا, مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں ہے میرا خیال, کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا, اور وہ اس سے اپنی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی, گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا, بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا, سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں, صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں, اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے تو ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندیاں. تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو, سمجھتے ہو؟ سورہ مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا فرض نماز ہے یا وطر, ان کے پہلے قعدے میں اتحیات کے بعد اٹھنا لازم ہے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے, درود شریف پڑھیں گے یا آگے دعا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. باقی کتنا درود شریف غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا, تھوڑا سا پڑھنے سے نہیں. تو اس میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ایھا النبی کی ہا تک وجہ اس کی ہے کہ اس بارے میں ہمیں
قرآن و سنت سے واضح طور پر کچھ بھی نہیں ملتی کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب. اتنا تو ہے کہ اتحیات سے آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قادم میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے درود پڑھنا جائز نہیں ہے, تاخیر جائز نہیں ہے قیام میں. لیکن اب ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, قرآن کہتا ہے جتنی اللہ سے استطاعت ہے ڈرنے کی ڈرو. تو مجتہدین نے پھر اجتہاد کی. اب ظاہر ہے تاخیر سے, میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فوراً کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے. تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں. تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا. تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہا نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ نماز ہے تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے, کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے, ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے, تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر. جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں, کم سے کم 3 دفعہ, جو سنت کا ادنا درجہ ہے. تو اس لیے حضرات نے کہا, فقہا نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس. اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ, حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد. تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے. تو وہ جو حروف بنتے ہیں ایھا النبیو کی ہا تک بنتے ہیں. اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے, تو حضرات فقہا نے آسانی کے لیے کہ بھائی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ ایھا النبیو کی ہا تک پوری ہو جاتی. تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ سہو واجب, اور وہاں تک تاخیر نہ کرے اس سے کم پڑے تو سجدہ سہو واجب. اچھا بھائی صاحب حال کیا ہے. اور کیا جامع تاہے ہوتے ہیں, ہو سکتی, ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جا رہا ہے. جو چیزیں ہو سکتا تھیں ان کو بھی ہو سکتی بنا دی. LLB ہو سکتا ہے, ہو سکتی نہیں ہے بھائی. تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو, تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے. LLB آپ وہاں سے BBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں. تو ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں, ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت, تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے. لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو, 30% ہو, اور مدرسے میں 70% دین ہو, 30%, کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا, ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس لیے جامعہ کا یہ ہدف. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو, جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں لازمی, ان سائیڈ افیکٹس کو برداشت کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جامعہ میں جب یہ دنیاوی علوم بھی آئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا کلچر بھی آتا ہے تو پھر وہ والی روحانیت جو خالصتاً دینی علوم میں روحانیت اللہ نے ایک رکھی ہے وہ نہیں رہتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جامعہ الرشید گئے وہ والی روحانیت نہیں آ رہی جو فلاں مدد. تو بھائی وہ ظاہر ہے جب دنیا اس میں آئے گی تو اب چونکہ یہ دنیاوی علوم پہلے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں ہوتے تھے لیکن وہ مسلمان سائنسدانوں کے علوم تھے, تو کلچر بھی مسلمان سائنسدانوں کا, تو وہ پہلے سے ہی اسلامی کلچر تھا. اب جب آپ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں نا گورے کے, تو کچھ نہ کچھ ٹچ گورے کا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے. اب بڑے مفاد کو سامنے رکھا جائے نا تو یہ چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں. جنہوں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگائی 2 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے. اب وہ کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں تو فیور ہو گیا, ہمیں تو بخار ہو گیا, ہمیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوٹا موٹا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو نہیں لگاتے نا تو پھر جو ہونا تھا اس میں ریورس ہونے کے چانس, پھر وہ قبر تک بھی پہنچا سکتا تھا. ہمارے بھی بہت سارے جاننے والوں کو لگا جب ویکسین لگی نا تو 3 دن تک وہ اٹھے ہی نہیں. تو اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی مرنا تھا, تو ویکسین تو سب کے لگی تھی, وہ مر گئے. تو پھر ہمارے یہاں فوراً یوٹیوب پہ دیکھو اس کے ٹیکا ٹھوکا, وہ مر گیا. ٹیکا پہ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے مرنا تھا, تو ٹیکا تو ویسے ہی ٹھک گیا ان کے, وہ ٹیکے سے نہیں مرے, وہ ویسے ہی مرے. تو ریسرچ کا جو ہمارے ہاں جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, گوروں کا تھوڑا سا الگ ہے. گولے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں, اتنے کروڑوں لوگوں کے کولوں پہ جب انجیکشن, کولوں پہ نہیں سوری بازوؤں پہ انجیکشن لگے ہیں, تو پہلے ڈیتھ ریشو کتنا تھا اب کتنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار تھوڑا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وسیم کے لگا وہ مر گیا, غفار کے لگا مر گیا. ابے خالی وسیم اور غفار کے تو نہیں لگا نا, کروڑوں لوگوں کے لگا ہے, وہ تو نہیں مرے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ویسے انتقال کا ٹائم ہو ان کے, تو اتنے لوگوں نے تو ویسے ہی مرنا تھا نا. تو ریسرچ سب ہمارے ایسی فضول چیزوں کو بیس بنا کے ریسرچ, اور ایک دم آئے گا کوئی بندہ, وہ یہ دیکھو اسپتال میں جنازہ, ابھی ان کو ٹیکا لگوا کے گیا ہوں, ابھی مر گیا, یہ ابھی میرا ہے. تو فوراً یوٹیوب پہ اور پھر اس کے انٹرویوز, اور پھر وہ عجیب ایک پینک پھیلایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی بہت ہی چیزوں میں بہت ہم. اچھا بھائی تو جامعہ الرشید میں جب یہ علوم ہیں تو کچھ نہ کچھ کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. علوم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, علم کے جو کلچر ظاہر ہے, جو اب جو یہ دنیاوی علوم تو پروفیسر حضرات ہی آگے پڑھائیں گے نا. اب یونیورسٹیوں میں جو پڑھائیں گے تو پروفیسر لوگ آئیں گے نا. اس دن مجھ سے کسی نے کہا جامعہ الرشید میں ایک انٹی ٹہل رہی تھی, جامعہ میں انٹی کا کیا کام ہے, یہ مدرسہ ہے یا انٹی کیا کر رہی ہیں. تو پھر ہم نے تحقیقی پتہ چلا کہ جی وہ جو ایجوکیشن بورڈ کی ایک ممبر ہیں وہ سروے کے لیے آئی تھی. تو اب سروے کے لیے جب انٹی آئیں گی تو مدرسہ ان کو یہ کہہ کے تھوڑی نکال سکتا ہے یہاں صرف انٹے آ سکتے ہیں, انٹیوں پر یہاں پابندی. وہ تو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی, وہ جو بھی سروے کے لیے جو بھی آئے گا, چاہے وہ
कुछ भी हो, मर्द हो या औरत हो या कुछ भी हो, कुछ भी, तो अब क्योंकि एलजीबीटी भी बहुत फैल रहा है ना, तो वो कुछ भी हो उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब ये चीजें आएंगी तो तमाम लवाज़िमात के साथ आएंगी। अब इसमें देखना ये है कि बड़ा नुकसान किस में है, कि आंटी की वजह से हम एजुकेशन ही पे पाबंदी लगा दें, तो फिर भाई फिर जो उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसकी मिसाल है कि भाई जब आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो उसके भी तो साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। कितने लड़के हमसे कहते हैं हम कराची यूनिवर्सिटी में, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां जाके नजर की हिफाजत नहीं होती, यहाँ तबलीग में सरोजा लगा के ऐसा दिल बनता है, रूहानियत पैदा होती है, वो वहां जाके 2 दिनों में रूहानियत की ऐसी की तैसी हो। तो अब हम उनको ये मशवरा दें कि पढ़ना छोड़ दो आप, और जब तक 100% इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती उस वक्त तक ना पढ़ो। तो इस्लामी हुकूमत तो पता नहीं कायम हो ना हो, थोड़ा बहुत जो मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं वो भी पीछे। तो बिल्कुल ही जाहिल, बिल्कुल ही निरे कोरे के कोरे हो जाएंगे। सिर्फ इतना रह जाएगा कि नजर की हिफाजत रूहानियत को लेके बैठे हुए होंगे अपने कमरे में, और थोड़े दिनों में जब आप पर दुश्मन ताकतें आपको खाएंगी ना तो वो रूहानियत भी तेल लेने चली जाए। तो दुनिया के साथ जब मुकाबला करना पड़ता है, बिल्कुल इसकी मिसाल हमें कुरान में भी मिलती है। जब तबूक की लड़ाई थी ना तो उसमें क्या था कि बहुत सख्त फितना था उसमें लड़ाई में, यानी बड़ी सख्त लड़ाई थी। तो बाज मुनाफिकीन ने कहा कि हम नहीं जा रहे, और दलील ये दी कि वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो तो था ना रूमी थे, तो अंग्रेजों की बाप दादे, तो वो बड़ी खूबसूरत औरतें, तो हमें फितने का डर है, हम जंग में जाएंगे उन लड़कियों पे नजर पड़ेगी, एक्चुअली हम किस में आ जाएंगे, फितने में आ जाएंगे। तो कुरान ने उनकी इस अमल को अप्रिशिएट नहीं किया कि इतने नेक परहेजगार लोग कि इसको ये खतरा है कि नजर की हिफाजत नहीं हो सकेगी, लिहाजा इनको ये बिल्कुल सही नीयत से रुक रहे हैं। कुरान ने कहा अला फिल फितनती सक़तू, फितने में तो तुम पड़ गए हो जहाज से बच के। जहाज से पीछे रहने में जो फितना है, दुश्मन हमला करके काट के खा जाएगा तुम्हें, सारा इस्लामी निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ये फितना बड़ा है। और ये जो तुम फितने की बात कर रहे हो ये झूठ बोल रहा है फितने के नाम पे। अगर इसको अल्लाह का खौफ होता ना तो ये इस फितने को छोटा समझता, उस फितने को बड़ा। तो ये लेबल लगा रहे हैं फितने का, असल फितना नहीं है। असल तो ये कि इसको जहन्नम की आग का खौफ नहीं है। तो बाज़ दफा लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, एक्चुअली असल में नजर की हिफाजत। भाई आगे मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो नजर की हिफाजत करो, हम नहीं कह रहे कि वहां जाके नहीं करो। रूहानियत खत्म हो रही है, उसको दोबारा से इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर, वो लगे रहो, लेकिन साथ साथ आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप पीछे हो गए ना मुस्लिम कौम, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझता है कि नहीं समझता है? तो इसलिए अब ये तो सब चीजें सोसाइटी का हिस्सा है, तो अब इन्हीं में रह के ही आपने नेक बनना है। ऐसा नेक बनने के लिए फिर जंगल में ही जाना पड़ेगा और वहां रह के फिर किसी काम की। अच्छा भाई, इसलिए जामिया रशीद काम जो कर रहा है उसके साइड इफेक्ट हम मानते हैं कि होंगे, और वो हो सकता है आगे जाके इससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट आपको नजर आए। आप कहें कैसा मत है यार, यहाँ तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं। अब यूनिवर्सिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि लड़कियों पे पाबंदी लगाएं। हाँ, जामिया ये जरूर करेगा कि लड़कियों के लिए सेपरेट इंतजाम हो, को एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन लड़कियां भी होंगी। अब ये तो यानी इसके बगैर तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड ही नहीं होती, उसको परमिशन ही नहीं मिलती है। तो अब उसमें यह है कि अच्छा यार वो लड़कियां भी आ रही हैं, भाई आ रही हैं। अब उसमें यह होगा कि जो मदरसुल बनात की लड़कियों का माहौल होता है वो वाला माहौल वहां पर नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम वो वाला बेहुदा माहौल ना हो जो दीगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो शर को जब खत्म करने की कोशिश की जाती है ना, तो या तो आपके पास रियासत हो, हुकूमत हो, फिर तो आप बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में कर दी उन्होंने तो पूरी पाबंदियां लगा दी, इस ड्रेस में आएंगी वरना नहीं आएंगी, ठीक है ना। और जब आपके पास रियासत हो तो ऐसा है, अगर रियासत नहीं है आपके पास तो फिर शर को अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो आप कम करने की कोशिश करें। कम से कम जामिया लड़कियों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो दे देगा ना कि जो स्काफ लेना चाहती हैं, जो एक लिबरल माहौल में नहीं पढ़ना चाहती, उनको तो एजुकेशन के लिए अच्छी जगह मिलेगी ना। अब तो जो पर्दा करना चाहती है, जो चाहती है कि मैं बुराई से बचूं, उसके पास भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसको या तो एजुकेशन से महरूम हो जाए या उसी बेहुदा माहौल में जाए। वो जो चल रहा है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता क्या माहौल चल रहा है, ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे बोलेंगे तो किस किस्म की बातें। तो रिपोर्टें जो आ रही है ना, एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटियों में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है। तो बिगड़ रही हैं लड़कियां, तो कम से कम जामिया रशीद इतना तो कर देगा ना कि जिसने नहीं बिगड़ना वो यहाँ के पढ़ ले। भाई थोड़ा सा तमीज का ड्रेस होगा, उसमें कुछ पाबंदियां लगा देंगे, कुछ नहीं लगा सकते। तो ये अब उसमें भी जाहिर है आप उसको जब कंपेयर करेंगे दीगर मदारिस से, तो जाहिर है वो वाली रूहानियत दीगर मदारिस में तो बिल्कुल एक इस्लामी माहौल होता है। लेकिन जब आप फ्यूचर से आप मुकाबला करेंगे, अगर हमने इस शर को खत्म करना है, फ्यूचर में कोई ऐसी लड़की जो इस्लामी माहौल में एजुकेशन हासिल, वो चाहती है डॉक्टर बने लेकिन तमीज के माहौल में बने, तो फिर उसके आपके पास क्या? के लिए तो फिर यही हल है भाई, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत से बचने के लिए हमेशा छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते?
भाई हाजी अब्दुर्रहमान की नौकरी का मसला दुआ की मर के दिखा दूं, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यानी कोई भी मरा हुआ हो तो उसका पूरा प्रॉपर, वैसे तो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है, किसी वक्त मैं भी बता दूंगा। आफियत साहब का जहन्नम और मौत का खौफ बहुत ज्यादा, क्या करें। देखो बाज लोगों में यह मौत का खौफ दिल की कमजोरी की वजह से, तकवा नहीं होता, वो थोड़ी सा भी इंसान का दिल कमजोर हो, सेहत कमजोर हो ना, तो वो छोटी छोटी चीजों से बहुत डर रहा होता है। तो इसके लिए है आप खमीरा इब्रेशम खाएं सुबह सुबह, सही बता रहा हूँ। खमीरा इब्रेशम जो है ना हकीमी दवा है, बाज हकीमी दवाएं बड़ी खानदानी है, बड़ी खानदानी। इसी तरह एक खमीरा मरावीर करके आता है कोई, दिल के लिए बहुत अच्छा, ऐसे दिल को जिनको घबराता रहता हो ना, लेकिन किसी हकीम से मशवरा कर लें, क्योंकि जाहिर है वो एक मीठी दवा है, तो ऐसा ना हो शुगर वुगर का मसला हो तो वो खा के शुगर लेवल ही ना बुलंद हो जाए। कोई किसी हकीम से अपनी नब्ज बब्ज, कोई तमीजदार अच्छा हकीम हो, ड्रामेबाज ना हो, तो उससे उसको बता दें तो दिल की हिकमत में बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, बहुत दिल को फरहत मिलता है, उससे फरहत मिलती है, सुकून मिलता है। फरहत तो मिलती है ना, मिलता नहीं है। तो मैंने इस पे एतराज किया था ना, उर्दू में ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसको मुज़क्कर मुअन्नस बना दिया, तो जो मुअन्नस है उसको बाज़ दवा मुज़क्कर बना देते। तो बाज़ दवाएं ऐसी हैं हिकमत में जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, वो दिल के लिए, आपके आसाब के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं, उसके वो साइड इफेक्ट नहीं होते जो बाज़ एलोपैथिक दवाओं के होते। लेकिन उसमें यह है कि कोई हकीम 2 नंबर ना हो और चीज़ भी 1 नंबर ही दे रहा हो। तो कंपनी की चीज़ें आमतौर पर ठीक ही होती हैं, कंपनी की अगर तो खमीरा इब्रेशम है, और ये इस तरह मरावी टाइप की तलफ़ुज़ भी नहीं पता, मरावी, तो वो दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर मौत का खौफ को ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो बाज़ दफ़ा दिल की कमज़ोर होता है, और अगर ऐसा नहीं है, दिल आपका फिटफाट है, सेहत आपकी माशाल्लाह फिटफाट है, तो फिर मौत का खौफ मुसल्लत अगर हो गया है तो उसको बैलेंस करें। इतना है कि नींदें उड़ना शुरू हो गई आपकी और घबराना और बेचैनी शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ा सा उम्मीद की चीज़ों को ज़्यादा, ठीक है ना, उम्मीद की चीज़ों को ज़्यादा सोचें, फिर मौत के तज़किरे ज़्यादा ना करें। इस्लाम हमें इतना मौत याद दिलाना चाहता है कि जिससे हम गुनाह छोड़ दें, इतना नहीं हमें दिलाना चाहता कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाए, किसी काम के ही ना रहें। इस्लाम करामत बनाना चाहता है ना, इतना मौत को मुसल्लत कर लिया कि किसी काम का ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो फायदा नहीं है। इतना मौत को मुसल्लत करो कि गुनाह छूट जाए आपसे, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, गुनाह छूट जाए दुनिया से। वो जो मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ी हुई है ना, इसको मुसाफिर खाना ही नहीं समझ रहे, वो खत्म हो जाए। इससे ज्यादा अगर आगे जा रहे हैं तो फिर तस्करे छोड़ दे मौत। एक साहब मेरे पास आए, वो इतना ज्यादा मौत की वीडियोस आई ना, मुर्दों को देखा उन्होंने, फला मर गया, तो दिमाग खराब हो गया भाई, हर वक्त मैं ना मर जाऊं, बार बार। मैंने कहा तू नहीं मरेगा, मुझे लग रहा है तू नहीं, इंशाल्लाह नहीं मरेगा। मजाक के अलावा मैंने कहा भाई इंशाल्लाह, आप तो उनको बताया जाए आप क्यों मरेंगे। तो वैसे तो हालांकि उसूल ही है, कराची में किसी का कोई सच नहीं बोला मैंने, झूठ। अच्छी बात तो ये भाई यहाँ डाकुओं का राज है, कोई किसी भी टाइम पे मर सकता है, लेकिन मैं अगर ये बात करता तो वो और टेंशन से मर जाता। तो ऐसे मौके पे उम्मीद ही की बात की जाएगी, इंशाल्लाह नहीं। वो ड्रामों में निकाह होते हैं वो जायज़ है, ड्रामों में जो निकाह होते हैं ना, इख्तिलाफ है तलाक में भी और निकाह में भी। बाज़ उलमा कहते हैं हो जाते हैं, इसमें आता है चीज़ें ऐसी मजाक भी, तलाक निकाह। तो अगर कोई ड्रामे में तलाक 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 तो 3 तलाक होती हैं। बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये हज़ल नहीं है, ये हिकायत है। हिकायत का मतलब स्क्रिप्ट है, एक कहानी है जो पढ़ के सुनाई जा रही है, लेकिन सुनाने का अंदाज क्या है, एक्टिंग करके सुनाई जाए। इसकी मिसाल है जैसे किसी ने मुझे कहानी लिख के दी कि एक दफ़ा जैद जा रहा था और जैद के अपनी बीवी से लड़ाई हुई, कहानी है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। और जैद ने अपनी बीवी को कहा कि अपनी बीवी का तुम मेरी बीवी और तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो आपने फौरन वो टुकड़ा काट लिया कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। तो तलाक नहीं दे रहे, वो क्या हो रहा है कि वो कहानी को नकल कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जो ड्रामा है ना, उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी होती है, कैरेक्टर होती है कि एक मर्द है और एक औरत है, तो उस कहानी को रिपीट कर रहा है वो। तो जब कोई हिकायत के तौर पे किसी अल्फाज को रिपीट कर रहा हो तो वो हज़ल नहीं है, वो नकल है। तो नकल से तलाक वाक़ई नहीं होती, लेकिन फिर भी ना तलाक होती है ना निकाह होता है, लेकिन फिर भी ड्रामों में ऐसा करना नहीं चाहिए, समझते हो, क्योंकि निकाह और तलाक के बारे में बार बार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयत को मजाक मत बनाओ। तो ड्रामे में अगर किसी ने बीवी को तलाक देनी है ना, तो वो फिर अपनी बीवी को ना दे भाई, वो किसी और की बीवी को दे। ऐसे एहतियात के बाहर, क्योंकि इख्तिलाफ आ गया उलमा का, तो एहतियात का तकाजा ही है। या ऐसा करे कि किसी को बिठा के बोले कि तुम्हें तलाक है और बाद में आप क्लिप में उसकी बीवी बिठा दें सामने, ठीक है ना, हसल में उसको ना दिया हो, बाद में जोड़ दे क्लिप कोई दूसरा। तो ऐसा कोई उनको हीला इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि लोग निकाह और तलाक के खेल को मजाक ना। फिर कोई पूछे कि ड्रामे में तुमने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो वो बोल दे कि भाई मैंने अपनी बीवी, उस वक्त मेरी बीवी नहीं थी, मैंने ऐसे किसी को दी है, और बाद में फिर वो एडिटिंग करके वीडियो में बेगम को जोड़ दिया, तो फिर थोड़ी तलाक होती है। एक आदमी बैठे बैठे कह रहे तलाक है, तलाक है, तलाक है, किसी ने वीडियो बना ली और बाद में उसकी बीवी को सामने वीडियो में एडिटिंग करके बिठा दिया, तो थोड़ी होगी, वो तो एडिटिंग हुई है ना उसमें। तो ऐसा कोई हीला कर लेना चाहिए। निकाह तलाक के हकाम जो मसाइल है ना, उनको खेलने में। हराम जानवर की खाल से जैकेट बनती जायज़ है, सिर्फ सूअर की खाल से हर तरह का फायदा उठाना हराम है, ना उसकी जैकेट बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। सूअर के अलावा जितने हराम जानवर हैं उनकी खाल अगर सुखा दी जाए, दबागत दे दी जाए तो वो पाक हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते? कोई भी हराम जानवर हो, बिल्ली है, कोई भी है, दबागत दे दी ना उसको, दबागत का मतलब ये है कि उसको खुश करके उसकी सारी रुतूबात खत्म हो जाए, तो फिर वो खारजी इस्तेमाल, खाने पीने में नहीं, खारजी इस्तेमाल उसका जायज है। अलबत्ता जो जानवर मुर्दार है ना, उसका खाल के अलावा कोई भी चीज किसी भी तरह से फायदा नहीं उठा सकती। मैं बार बार ये मसला बताता हूँ कि लोग बिल्लियां पालते हैं, उनकी खुराक
फीड बाहर से आती, वो मुर्दार, वो ज़बीहा नहीं होता, तो बिल्ली को भी नहीं खिला सकते, कुत्ते को भी नहीं खिला। समझते हैं कि नहीं समझते? जानवर खुद मुर्दार खा ले, उसको छोड़ दें। ऐसा ना कुत्तों को मेरा बयान सुना कि आप मुर्दार से हटा रहे हो कि तुम नहीं खा सकते, वो खा सकता है, आप अपने इख्तियार से नहीं खिला सकते। हमारे एक दोस्त है, उनका फॉर्म है, उनका मगरमच्छ भी पाले हुए हैं, उनका घोड़ा मर गया तो घोड़ा उन्होंने मगरमच्छ के सामने डाल के खा ले। मैंने कहा यार ये आपने किया, मगरमच्छ खुद वहां पहुंच के जो मर्जी करे, आपके लिए मुर्दार की किस्म का फायदा उठाना जायज नहीं। हदीस है इस बात, उम्मत का इजमा है कि मुर्दार से कोई फायदा नहीं उठाया जाता। तो मैंने कहा उसका तरीका ये था, ये घोड़ा जब मरने वाला था तो ज़बह कर देते इसको, फिर आप डाल देते मगरमच्छ के सामने। समझते हैं कि नहीं समझते? हम लोग 5 भाई 2 जगह चाहते हैं, देखो 11 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 11 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो जवाब आए वो एक बहन का हिस्सा, उसका डबल। विरासत से मुताल्लिक कोई भी हकाम हो ना, प्रॉपर लिख के दे दिया। इसमें बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ती कि उनके और वारिसीन और कौन कौन है, किसी वारिस का जिंदगी में इंतकाल तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं कि एक का इंतकाल हो गया फिर आगे उसके बीवी बच्चे। उसका तरीका यही कि यहाँ आप सवाल प्रॉपर लिखे, अपना नंबर डाल के, ये मौलाना सफ़ी साहब है मेरे शागिर्द, इनके हवाले कर। मुफ्ती साहब मैं मर्दान से आया हूँ, आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ। भाई आप मर्दान से आए हैं, मुझे बहुत ज़रूरी काम से फौरन कहीं जाना है, तो आपका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने आपसे मुसाफा किया तो बहुत से लोगों की फिर लाइन लग जाएगी और मुझे बहुत देर हो जाए, तो अब फिर इंशाल्लाह किसी वक्त हम मुसाफा भी करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो चाय भी पियेंगे। एक कोई सवाल पूछना हो तो, वैसे वो मर्दान वाला है कहाँ पे? आप कोई और ना उठे। हाँ जी, हाँ पढ़ सकते। बहुत ज्यादा जल्दी हो तो रुकू और सजदे की एक मर्तबा भी पढ़ से हैं। अभी जल्दी हो, शादी में जाना है अपनी है। हाँ, अगर मुहाफिज नमाज पढ़ रहा है और उसको फायर की आवाज आए तो वो नमाज तोड़ दे, अगर बाकी गोली की फायर है तो उसको पर वाजिब है कि नमाज पढ़े। समझते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने नमाज में सांप देखा, उसे चाहिए कि सांप को मारे जाके। वजह क्या है? खतरा है ना सांप से, आपको नहीं काटेगा, हो सकता है किसी दूसरे नमाजी को काट ले, तो जिसने देखा वो तोड़े नमाज और जाके उस सांप को मारे पहले। तो सांप का से मौत का इतना यकीन नहीं होता, फायर से ज्यादा। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है कि इमाम साहब का तकवा देखो, जल्जला आ रहा है फिर भी खड़े, पीछे पब्लिक भाग गई ना, और नीचे कमेंट्स होते हैं माशाल्लाह इमाम साहब, और ये होता है। बेवकूफ है भाई वो इमाम कि जमीन हिली हुई और फिर भी खुशू खुजू से नमाज पढ़ा के अपने आप को भी मरवा रहा है और पूरी कौम को भी मरवा रहा है। तो कहीं भी कोई खुदा न खास्ता खतरा हो, फौरन सबसे पहले अपनी हिफाजती तदबीर का इंतजाम करना। समझते हो कि नहीं समझते? सबसे पहले अपनी हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए, फौरन एक्टिव हो जाना चाहिए। जान बचाना सबसे पहले, नमाज उसके बाद। जान होगी तो नमाजें पढ़ते रहोगे ना। तो ये इस्लाम का हुक्म है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जमीन हिलना शुरू हो जाए कहीं मस्जिद में, कहीं नमाज पढ़ रहे हो, सब पर वाजिब है कि नमाज तोड़ के फौरन पतली गली तलाश कर, बल्कि पतली गली में ज्यादा खतरा होता है, तो मैदान में आए वो। तो इसमें कोई तकवे की बात नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है, लिल्लाहियत की इम्तिहान है। और फिर पता नहीं वो अंदर से क्या उस पर गुजर रही हो। वो अंग्रेज के दौर में ना, अंग्रेज मुसलमानों को फौज में भर्ती करता था, तो किसी ने कहा कि यार तुम मुसलमानों को भर्ती करते हो, फलां कौम के लोगों को। उसने कहा फलां कौम के लोग जो है ना वो बुज़दिल होते हैं, फलां कोई खास किस्म की कौम थी, नाम नहीं लेता इससे कौम परस्ती। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो कौम के लोग बड़े बहादुर होते हैं। अंग्रेज ने कहा ठीक है भाई, ठीक है आ जाओ, हम ऐसा करते हैं कैप पहन के खड़ा करते हैं, निशाना मारेंगे टोपी पे, जो खड़ा रह गया बहादुर है, जो भाग गया डर गया हिल गया तो इसका मतलब बुज़दिल है। तो वो मुसलमान था, वो खान साहब थे, उनको खड़ा किया, सर पे गोली मारी, खान साहब खड़े हुए, वेल डन भाई। तो दूसरे पे के सर पे गोली मारी, खड़ा हुआ, वेल डन। यार ये खान साहब भी बहादुर निकले और ये दूसरी कौम का बंदा जो गैर मुस्लिम भी बहादुर है। तो अंग्रेज ने कहा कि यार अभी क्योंकि वो खराब हो गई है तो टोपी के इसको पैसे दो। जो दूसरा बंदा है उसने कहा हुजूर धोती धुलाई के पैसे भी, धोती धुलाई के पैसे भी। तो बाज लोगों पे खौफ के ऊपर कोई असरात नहीं होते, लेकिन इंटीरियर जो है ना उनका वो बहुत डिस्टर्ब होता है। इंटीरियर जो है ना वो बहुत ज्यादा उनका डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है, तो वो पूरी धोती उसकी बेचारे की खराब हो गई। तो ऐसा ना हो कि जलजला आ रहा है, आप खड़े हुए हैं तो ऊपर से तो लग रहा है बड़े बहादुर हैं और इंटीरियर जो है आपका सारा डिसबैलेंस हो जाए। नहीं, बैंक देता है नहीं, बैंक जो सूद देता है सिवाय सवाब की नीयत के बगैर उसी काम में लगे और कोई नहीं। हाँ, अगर वो गैर मुस्लिम जो है वो गरीब है, मिस्कीन है, तो वो भी बगैर सवाब की नीयत से उसको, यानी उसको देने की अलग से कोई फजीलत नहीं है। जैसे किसी भी खैर के काम में खर्च कर सकते हैं तो उसमें भी खर्च कर। हाँ, खाना खा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसौकत अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कौन सा जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ सबसे, कौन सा अमल, देखो फिर तो शुक्र में सबसे पहले ये है कि नेमत खा रहे हो उसकी नाफरमानी ना करो। जबान से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं बाज लोग, लेकिन जब उसी नेमत को खा के उसी की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ी नाशुक्री। काफिर सबसे बड़ी नाशुक्री ये करता है जिसकी नेमत है उसकी तरफ निस्बत नहीं करता, ये उससे भी बड़ी नाफरमानी। लेकिन इस नाफरमानी से अल्लाह मुसलमान को बचाते हैं, वो मानता है कि अल्लाह ने दिया। अगला स्टेप है कि फिर उसकी नाफरमानी न की, तो काफिर को अल्लाह बड़ा नाशुक्रा कहते हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ मंसूब ही नहीं करता ना, वो तो नेचर के खाते में डाल देता है या अपने जो झूठा माबूद है उसके खाते में डाल देता है। मुसलमान कहता है अल्लाह की नेमत है, यहां तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अमल करता है, लेकिन आगे फिर उसकी नाफरमानी। सबसे पहला शुक्र ये कि आप जब अल्लाह की नेमत से फायदा उठाएं तो उसकी नाफरमानी ना करें। वक्त काफी ज्यादा हो गया, मुझे कहीं निकलना है भाई। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा।